Welcome children. After a short break for your Raksha Bandhan enjoyment, back we are to our lectures and hope you all must have enjoyed a lot after a long time period in this COVID time and all. You must have met your family members, Mama Gar and Didi and lots of enjoyment and all with the family. So back to your studies again. And hope this part now we continue along with lots of hard work from your end and test from our side, right? So be on your toes and keep on working hard, as I think so at the end of this month again in your school it is heard that there will be again a second unit test. So please keep on doing hard work. So the fifth chapter of the Moments is the Happy Prince, and here just an introductory part, that is the Happy Prince was a beautiful statue. He was covered with gold, he had sapphires for eyes, that is precious stones, and a ruby in his sword. So that whole statue of that Happy Prince was covered with gold. So as such it was so very precious. Along with that आइस की जगह पे थे प्रेशियस स्टोन्स सफायर्स, स्वॉर्ड में था एक embedded ruby. And why did he want to part with all this gold that he had and his precious stones? So let's see that why this happy prince wanted to part away, that is he wanted to give away all this gold and precious stones that he had. So here we start with this story that is high above this city on a tall column. मतलब एक बहुत ही ऊंचाई पे एक हाइट पे देयर वाज पेडेस्टल, जैसे कि एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया गया था, उसके ऊपर एक स्टैचू था दैट वाज ऑफ अ हैप्पी प्रिंस. ही वाज गिल्डेड एक्चुअली मीन्स कवर्ड विद गोल्ड all over with thin leaves of fine gold. For eyes, as we already saw, he had two bright sapphires and a large red ruby that was already glittering on his sword hilt, right? Now one night it so happened that there flew over the city a little swallow. It's a small bird, similar, like it looks like our Indian sparrow. His friends had gone away to Egypt 6 weeks back, but he has stayed behind. अब 6 हफ्तों के बाद ये बर्ड भी सोच रहा है कि चलो मैं भी इजिप्ट चला जाऊँ. सो ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट एंड ऑल डे लॉन्ग ही केप्ट ऑन फ्लाइंग एंड फ्लाइंग. फिर रात तक होते होते बेचारा थक गया, तो उसने सोचा चलो वैसे भी अंधेरे में तो उड़ा नहीं जाएगा, लेट मी टेक सम रेस्ट एंड अ हॉल्ट एट अ पर्टिकुलर सिटी. मतलब तब तक वो एक सिटी की तरफ आ चुका था. ही अराइव्ड एट द सिटी एट नाइट. वेयर शैल आई पुट अप मीन्स वेयर शुड आई गो एंड रेस्ट. ही सेड टू हिमसेल्फ, आई होप द टाउन हैज़ मेड ग्रेट प्रिपरेशंस. मतलब आई होप कि यहाँ पे कुछ तो इस टाउन में प्रिपरेशन होगी जहाँ पे जाके मैं थोड़ा आराम कर लूँ. Then he saw the statue on a tall column. ये बड़े से कॉलम पे, मतलब ऊंचा सा जैसे कि एक पिलर, उसके ऊपर एक फ्लैट बेस, मतलब एक प्लेटफॉर्म जैसा खड़ा किया जाता है. एंड ऑन दैट देयर वाज द स्टैचू. सो ही सेड दिस इज द बेस्ट प्लेस वेयर आई कैन गो एंड रेस्ट फॉर टुडे, दैट इज टुनाइट. और कल सुबह उठ के आई विल फ्लाई अवे टुवर्ड्स माई फ्रेंड. I will put up there, मतलब मैं यहीं पे रुक लूँगा. I'll take shelter on this column. He cried. Cried मतलब रोना नहीं. He just said, it's a fine place. It's a fine position with plenty of fresh air. और इतनी ऊंचाई पे तो fresh air भी होगी, मतलब हवा भी होगी, shelter भी मिल जाएगा. उसने स्टैचू देखा तो उसने कहा चलो इतनी सी the small bird एंड दैट बिग स्टैचू, तो उसके नीचे उसने सोचा जाके उसके पैर के पास में सो जाऊं. सो ही अलाइटेड मीन्स डिसेंडेड टू कम डाउन जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, राइट. धीरे धीरे करके बर्ड नीचे आ गया. आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, माई गॉड, ही सेड. ये स्टैचू तो पूरा गोल्ड का बना था. तो बर्ड तो एकदम खुश हो गया. उसने कहा वाह, आज तो मैं सोने जा रहा हूँ गोल्डन बेडरूम में. He said softly to himself as he looked around, and then he prepared to go to sleep. फिर उसने सोचा चलो सो ही जाता हूँ, राइट.
So he was preparing himself to go to sleep. But just as he was putting his head under the wing, a large drop of water fell on him. अब जैसे ही वो खुद के विंग के अंदर ऐसे अपना सर रख के सोने जा रहा था, अचानक से बड़ा सा ड्रॉप पानी का एक उसके ऊपर गिरा. What a curious thing. Curious मतलब कितना अजीब है. स्काई क्लियर है, एक सिंगल क्लाउड भी नहीं है स्काई में, स्टार्स आर इजीली सीन, इज क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट, फिर भी बारिश हो रही है. माय गॉड, ये तो अजीब, समथिंग वेरी वियर्ड, समथिंग वेरी क्यूरियस. अनदर ड्रॉप फेल. अब फिर से एक ड्रॉप गिरा. व्हाट इज द यूज ऑफ अ स्टैचू इफ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ. और वो खुद से बात करने लगा कि ये स्टैचू तो बेकार है, क्या मतलब हुआ इस स्टैचू का अगर वो बारिश से मुझे बचा ना सके. ही सेड, आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट. तो चलो जाके कहीं पे ढूंढ के आता हूँ, कोई गुड चिमनी पॉट मिल जाए, उसके अंदर सो जाऊं शेल्टर में. सो ही डिसाइडेड दैट ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे. बट बिफोर ही हैड ओपन्ड हिज विंग्स, अ थर्ड ड्रॉप फेल एंड ही लुक्ड अप and saw. What did he see? My God, what's this? ये प्रिंस के आंखों के आंसू थे जो टपक पड़ रहे थे उस पे, राइट. सो सडनली द थर्ड ड्रॉप, उसने ऊपर की तरफ देखा. द आईज ऑफ अ हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विथ टीयर्स. उस हैप्पी प्रिंस की आंखें आंसू से भरी थी. एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स. और क्योंकि वो पूरा प्रिंस तो गोल्ड का बना हुआ था, तो नेचुरली टीयर्स उसके गोल्डन चीक्स के ऊपर से फ्लो हो रहे थे. हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल इन द मूनलाइट. और मूनलाइट के अंदर इस हैप्पी प्रिंस का फेस इतना ब्यूटीफुल दिख रहा था कि लिटिल स्वैलो को दया आ गई उस पर. ही वॉज फिल्ड विथ पिटी. हु आर यू, ही सेड. मतलब उस बर्ड ने पूछा प्रिंस को, हु आर यू. और हैप्पी प्रिंस से कहा, आई एम द हैप्पी प्रिंस. अब बर्ड बेचारा गड़बड़ी में आ गया, कह रहा है कि मैं हैप्पी प्रिंस हूं, तो रो क्यों रहा है. सैड होगा तभी तो रो रहा है ना. वाई आर यू वीपिंग देन, यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी. और स्वैलो ने कहा, तुम रो क्यों रहे हो, तुमने तो रो रो के मुझे गीला बना दिया, पूरा मैं गीला हो चुका हूं. वेन आई वॉज अलाइव एंड हैड ए ह्यूमन हार्ट, आंसर्ड द स्टैच्यू, आई डिडंट नो व्हाट टीयर्स वर बिकॉज आई लिव्ड इन द पैलेस where sorrow was not allowed to enter. मतलब इस प्रिंस ने कहा कि जब मैं अलाइव था, मेरे पास ह्यूमन हार्ट था, इट वॉज, माई हार्ट वॉज बीटिंग दैट टाइम, मीन्स आई वॉज अलाइव. और तब मुझे पता नहीं था कि दुख क्या है, आंसू क्या है. मैं एक बड़े से पैलेस में रहता था जहाँ पे दुख की एंट्री अलाउड नहीं थी. माई कोर्टियर्स कॉल मी द हैप्पी प्रिंस. और जब अगर मैंने कभी दुख देखा ही नहीं, तो मैं तो हमेशा खुश ही रहूँगा. फॉर एग्जाम्पल, अब तुम कहोगे मैम तो बार बार हम पे आ जाती है, बट दैट मेक्स द अंडरस्टैंडिंग ईजी. इफ एट ऑल, जस्ट इमेजिन कि तुम जो भी मांगो सब में घर में हाँ होती है. तुम कहो किसी को उठो तो उठे, बैठो तो बैठे, नहीं पढ़ना है तो ओके, टीवी देखना है तो ओके, सो जाना है तो ओके, ये खाना है तो ठीक है, वो नहीं खाना ओके ठीक है, एवरीवेयर यस यस यस. तुम कहोगे वाह ये लाइफ, ये तो ड्रीम में ही दिखाई देती है मैम हमें, एक्चुअल में तो ये होता नहीं. एक्चुअल में क्या होगा, ना, नो नो नो, राइट. मम्मी मैं पढ़ाई करूं, यहाँ पे यस, एंड योर मदर विल बी शॉक्ड, सरप्राइज, हाय मेरा बेबी पढ़ाई के लिए पूछ रहा है कि मम्मा मैं पढ़ने बैठूं. सो दिस इज जस्ट, डोंट इमेजिन, ये होगा ही नहीं ऐसे. तो राइट, जब हर एक चीज में हाँ होती है, वी आर हैप्पी. द मोमेंट समबडी सेज नो टू अस, ये मुंह फुला के बैठ गए और थोड़ा डांटा तो आंखों में आंसू आ गए, टप 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 नीचे गिरने लगे आंसू. दिस इज वॉट वी ऑल आर. इट्स नॉट ओनली यू, इट्स मी टू. आई डू द सेम थिंग. इट्स ओनली थिंग, यस समटाइम्स कभी कुछ चाहिए और नहीं मिला तो आई जस्ट बैंग द डोर. फिर लगता है हाई ये बैंग द डोर किया, टूटेगा तो खर्चा मुझे ही देना होगा, राइट. तो गुस्से से तो मतलब नहीं है. सो अब ये राजा खुश क्यों था? वाई द प्रिंस वॉज कॉल्ड हैप्पी प्रिंस?
दुख उसके पास कभी किसी ने आने ही नहीं दिया पैलेस में. My courtiers called me happy prince, and happy indeed I was. That is, of course, I was happy. So I lived and I died. तो जब तक मैं जिंदा था हैप्पी हैप्पी, फिर ऐसे ही हैप्पी हैप्पी चला गया इस दुनिया से. And now that I am dead, they have set me up there so high that I can see that ugliness and the misery, मतलब the dirtiness, the reality I would say. ugliness मतलब जो reality है वर्ल्ड की, हमारे लाइफ की. misery जो है, दुख है. I could see from here, from the top, क्योंकि लोगों ने राजा का पुतला ये हाइट पे लगा दिया था. अब वहाँ से वो पूरे अपने राज्य को देख सकता था. And though my heart is made of lead, मेरा हार्ट तो बना है लेड का, but I cannot choose but weep. अब चाहे मैं एक स्टैचू हूँ, गोल्ड का बना हुआ, प्रेशियस स्टोन्स, लेड एंड ऑल, लेकिन फिर भी मेरा हार्ट रो रहा है. That is, I am feeling very sad when I see from here all that sadness in my city. What? Is he not solid gold? अब सोला तो बेचारा एकदम से चकरा गया दिमाग उसका. ये क्या है, उसने खुद से ही बात की. क्या ये गोल्ड का नहीं बना है ये प्रिंस? He was too polite to make any personal remarks. लेकिन स्वॉलो बहुत अच्छा था, उसने कोई पर्सनल रिमार्क नहीं किए, मतलब कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चनिंग या कोई रिमार्क करना, क्रिटिसाइज करना, नथिंग. दिस बर्ड वॉज टू गुड टू पोलाइट. नाउ द स्टैचू कंटिन्यूड हिज स्टोरी. फार अवे इन दैट लिटिल स्ट्रीट देयर इज अ पुअर हाउस. मतलब यहाँ से मुझे दिख रहा है कि दूर दूर मैं देख रहा हूँ एक छोटी सी स्ट्रीट है, मतलब एक लेन है जहाँ पे एक गरीब का घर है, झोंपड़े जैसा. वन ऑफ द विंडो इज ओपन. आई कैन सी थ्रू दैट विंडो दैट देयर इज अ वुमन हु इज सीटेड एट अ टेबल. वहाँ पे मैं देख सकता हूँ विंडो के थ्रू, जो विंडो खुली है थोड़ी, कि एक लेडी बैठी हुई है टेबल के पास. हर फेस इज थिन एंड वोर्न, मतलब पूरी मुरझाई हुई, थकी हुई. शी हैज कोर्स रेड हैंड्स. कोर्स मतलब रफ, बहुत रफ हाथ है उसके, लाल हो गए. ऑल प्रिक्ड बाय द निडल, जैसे कुछ कंटिन्यूसली स्टिच करते हैं और बार बार नीडल का लग जाना हाथ में, उसकी वजह से हाथ लाल हो गए. शी इज़ अ सीमस्ट्रेस. सीमस्ट्रेस मतलब जैसे अभी हम कहते हैं टेलर, बट यहाँ पे अ लेडी. तो अ वुमेन हु इज सिविंग द क्लोथ्स और स्टिचिंग द क्लोथ्स एंड अर्निंग अ लिविंग, मतलब घर चलाने के लिए जो कपड़े स्टिच करके बेच रही है, किसी का स्टिचिंग का काम कर दे. She is embroidering flowers on a satin gown. एकदम heavy gown जो है, एकदम silky satin, very costly gown. उसके ऊपर वो embroider कर रही है flowers का. And this gown is for the loveliest of the queen's maid of honor. अब queen की जो maid है, जो हम कहते हैं ना दासी, उसका ये गाउन बन रहा है. To wear at the next court ball. नेक्स्ट कोर्ट बॉल मतलब कोर्ट में मतलब राजा का दरबार, रानी का दरबार जो बैठता है वहाँ पे. बॉल, बॉल मतलब डांस, बॉल डांस कहते हैं, राइट. तो उसमें पहनने के लिए उस मेड ने ये ब्यूटीफुल गाउन बनवाया, दिया था बनवाने के लिए इस सीमस्ट्रेस के पास. इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल. और ये छोटे से हट में ये बेचारी गरीब सीमस्ट्रेस का लड़का बहुत बीमार है और वो एक कॉर्नर में सोया हुआ है बेड पे. ही हैज़ फीवर एंड आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम सम ऑरेंजेस. अब बेचारे को फीवर है और वो अपनी मम्मी के पास ऑरेंज मांग रहा है. बट मदर डजंट हैव एनीथिंग टू गिव बट ओनली रिवर वाटर. सो द चाइल्ड इज क्राइंग. स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट. तो प्लीज स्वॉलो, मेरे स्वॉर्ड के जो हिल्ट में से, मतलब कि जो हम जहाँ से पकड़ते हैं ऐसे, तो वहाँ पे एक रूबी एम्बेडेड था, तो वो निकाल के तुम उस गरीब लेडी को दे आओ. माई फीट आर फासन, मेरे पैर तो यहाँ पे स्टक अप है ना, एकदम उस पेडेस्टल के ऊपर मैं तो स्टक किया गया हूँ. आई एम टाइड ओवर योर स्ट्रांगली सो आई कैंट फ्लाई और रन एंड गिव दिस टू दैट पुअर लेडी. तो तुम मेरा ये काम कर दो. आई कांट मूव. And the story goes ahead.
आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सेड द स्वॉलो। अब स्वॉलो कहता है भाई मेरी राह देखी जा रही है इजिप्ट में, मेरे फ्रेंड्स तो 6 वीक पहले निकल गए थे, मैं लेट हूँ। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल, वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग टू लार्ज लोटस फ्लावर्स, सून दे विल गो टू स्लीप। अब देखो मुझे तो जाना ही होगा क्योंकि वो लोग मज़े कर रहे हैं, फिर लोटस से बात कर रहे हैं, फ्लावर से, फिर जल्दी वो सो जाएंगे, तो मुझे तो जल्दी उड़ के जाना है उनके पास। द प्रिंस आस्क्ड द स्वॉलो टू स्टे विथ हिम फॉर 1 नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। मैसेंजर मतलब कि सिर्फ किसी का मैसेज पहुंचाना नहीं, लेकिन आजकल जो हमारा कुरियर सर्विस होता है, राइट, कोई चीज़ जैसे अगर तुम लोगों ने राखी भेजी हो कोई और स्टेट में या सिटी में जहाँ पे इस टाइम पीरियड में हम नहीं जा सकते, तो दैट कुरियर सर्विस, तो उसे हम कहेंगे, यहाँ पे डाल दिया है मैसेंजर वर्ड। तो उसने कहा भाई 1 रात के लिए तो मेरा काम कर दो, ठीक है, कुरियर सर्विस कर दो। द बॉय इज सो थर्स्टी, मदर सो सैड, प्लीज डू दिस वर्क फॉर मी स्वॉलो, आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज। बेचारे स्वॉलो ने कहा मुझे लगता है मुझे लड़के पसंद नहीं, और काम मुझे उस लड़के के लिए करना होगा जो बीमार पड़ा है। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट। बट द हैप्पी प्रिंस वॉज वेरी सैड, सो द लिटिल स्वॉलो वॉज सॉरी। बेचारे ने कहा, स्वॉलो को भी दुख हो गया कि हैप्पी प्रिंस तो बहुत दुखी दिखाई दे रहा है। इट्स वेरी कोल्ड हियर ही सेड, बट ही सेड ओके फाइन, आई स्टे फॉर 1 नाइट एंड बी योर सपोर्टर। थैंक यू लिटिल स्वॉलो सेड द प्रिंस। अब बेचारे, जैसे स्टार्टिंग में मैंने कहा था, स्वॉलो बहुत ही पोलाइट था, बहुत अच्छा था ये नेचर से, उसको किसी का दुख देख के वो दुखी होता, इट वॉज एन इमोशनल बर्ड। तो उसने कहा ठीक है, ठंड तो बहुत है, चलो फिर भी आज रात के लिए रुक जाता हूँ आपके लिए। प्रिंस तो बेचारा खुश हो गया। द स्वॉलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी, पिक्ड आउट मतलब निकाल दिया उस प्रेशियस स्टोन को फ्रॉम द प्रिंसेस स्वॉर्ड and flew away with it in his beak over the roofs of the town. He passed by the cathedral. Cathedral tower मतलब the main church of the area, and where the white marble angels were sculpted. अब यहाँ पे white marble से angels की मूर्तियाँ बनी थी। He passed by, तो रास्ते में उसने इस चर्च को देखा, फिर रास्ते में उड़ते उड़ते उसने पैलेस को देखा, heard the sound of dancing. A beautiful girl came out to the balcony with a lover. I hope my dress will be ready in time for the state ball. और वो लेडी, वो ब्यूटीफुल गर्ल, वो क्या कह रही थी अपने लवर को बालकनी में खड़े हुए, जो स्वॉलो ने सुना कि आई होप कि मेरा ड्रेस जो उस सीमस्ट्रेस को दिया है वो टाइम पे मुझे रेडी करके दे दे। आई ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट, बट दिस सीमस्ट्रेस आर सो लेजी। लेकिन आजकल की ये जो सीमस्ट्रेस होती है बहुत लेजी होती है। टाइम पे बॉल डांस के लिए टाइम पे मुझे ड्रेस मिल जाए तो गुड, आई प्रे फॉर इट। ही देन पास्ड ओवर द रिवर, सॉ द लैंटर्न्स हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ द शिप। मास्ट मतलब शिप के ऊपर जो एक शड लगाया जाता है, दैट बिग बैम्बू, और फिर एक लैंटर्न भी लगाया जाता है वहाँ पे। तो वो रिवर के ऊपर से पास हो रहा था, उसने वहाँ पे लैंटर्न देखा जो उस पोल के ऊपर हैंग हो रहा था। At last he came to that poor woman's house and looked inside. The boy was tossing feverishly on his bed. मतलब उस बच्चे को फीवर था और वो ऐसे, he was not able to sleep comfortably, तो left to right, right to left हो रहा था बेड में। And mother had already fallen asleep क्योंकि वो दिन भर काम कर रही थी, रात रात काम करती थी थोड़े से पैसों के लिए। वो गाउन भी बना रही थी, ऊपर फ्लावर्स एम्ब्रॉयडरी वाला लगा रही थी। शी वॉज हाईली टायर्ड। इन ही हॉप्ड मतलब जम करके वो बर्ड अंदर चला गया। लेट द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल। थिम्बल मतलब थम के ऊपर एक मेटल या प्लास्टिक का कैप जैसा पहनते हैं कि अगर स्टिचिंग करते हैं तो ज़्यादातर लगता है थम में, तो नीडल लग ना जाए ज़्यादा, तो एक प्रोटेक्टिव कवर रहता है थम पे। एंड उस थिम्बल के बाजू में रख दिया वो रूबी। देन ही फ्लू जेंटली अराउंड द बेड, फैनिंग द बॉयज फॉरहेड विथ हिज विंग्स। फिर वो बच्चे के पास गया बेड के ऊपर। अब बच्चा एकदम गर्मी में, लाइक ही वाज टॉसिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड ऑल, तो उसने अपने विंग से उसको जैसे फैनिंग की। हाउ कूल आई फील सेड द बॉय, आई मस्ट बी गेटिंग बेटर। बच्चे ने अचानक से वो कूलनेस फील की। उसने कहा वाओ,
I think I'm getting better now. And then he sank into a delicious slumber. मतलब फिर बहुत ही अच्छी नींद में चला गया वो छोटा लड़का. Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. It's curious, he remarked, but I feel quite warm now, although it's so cold. अब हुआ ये कि वो स्वॉलो उड़ता उड़ता आ गया वापस हैप्पी प्रिंस के पास. उसने कह दिया कि ये काम मैंने कर लिया, लेकिन अचानक से उसने हैप्पी प्रिंस को कहा, आई फील दैट इट इज़ क्यूरियस, मतलब मुझे कुछ अजीब फील हो रहा है कि इतनी ठंड है फिर भी मुझे बहुत वार्मनेस फील हो रही है. एंड दैट्स बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्ट. प्रिंस ने कहा, देखो तुमने कुछ अच्छा काम किया आज, किसी को मदद की, इसीलिए ये वार्म फीलिंग आ रही है. व्हाट इज दैट वार्म फीलिंग? अ गुड फीलिंग. जस्ट डू समटाइम सम गुड एक्ट. वैसे तो तुम लोग छोटे हो तो हमेशा अच्छा ही काम कर रहे हो, राइट? तो फिर भी कभी ऐसे तुमने एक्सपीरियंस किया होगा दैट नॉट नाउ इन दिस लास्ट 4-5 months वेयर वी आर नॉट मूविंग आउट मच, बट उसके पहले जैसे कि तुम कहीं रास्ते पे ऐसे जा रहे हो, अचानक से तुमने देखा सम ब्लाइंड पर्सन वांट्स टू क्रॉस द रोड, देन यू रैन एंड यू सपोर्टेड दैट पर्सन इन क्रॉसिंग द रोड. ट्रूली टेल मी, मैसेज कर देना दैट you had done that act, any act not related to blind person, but किसी बहुत ही ज़रूरतमंद को सपोर्ट करना, या किसी बहुत ही एजेड पर्सन रिक्शा के लिए खड़ा है, दे आर नॉट, या खड़ी है, nobody, you know, they can't even say that रिक्शा वाला वेट फॉर अस एंड ऑल, और तुम जाके उनके लिए एक रिक्शा लेके आते हो, उनको अंदर सपोर्ट से बिठाते हो. सो नाइस ऑफ यू. ऐसे कोई एक्ट अगर किए हो तो जस्ट वॉइस मैसेज छोड़ देना ऑन माई व्हाट्सएप and tell me about your good act. We'll discuss over here in the next lecture. तो it so happened कि जब ऐसा कुछ काम करते हो, you must have had that feeling, पूरे दिन तुम खुश रहे. You felt like at the top of the world feeling, you know. This is what is called a good act. कि जो किसी को एग्जाम में हेल्प करना, फ्रेंड ने कहा आधा मार्क का तो बता दे यार, फ्रेंडशिप है अपनी, फ्रेंडशिप कब काम आएगी, एंड से यार ट्रू, हाँ माय बेस्ट फ्रेंड, चलो आधा नहीं 1 मार्क का तो बता दूँ, गुड, थोड़ा फ्रेंडशिप में ज़्यादा ही बताते हैं. दैट इज नॉट हेल्पिंग. दैट इज कॉल्ड नॉट ओनली द ऑपोजिट पार्टी इज चीटिंग, यू आर ऑल्सो चीटर. ऑनेस्टी, हार्ड वर्क, and you will feel good by the end of the day. These 2 things works a lot in life. For example, अच्छा किसी डफर को भी 1 मार्क की बताने की ज़रूरत नहीं है ना, उसको 10 मार्क की बताने की ज़रूरत नहीं. इज बिकॉज दैट पर्सन वॉज लेजी. डफर कोई नहीं है, लेजी. तो किसी को पढ़ाई में, हाँ, टेस्ट के अलावा कभी कोई तुमसे डाउट पूछने आए, यू सपोर्ट. कोई तुम्हें कुछ हेल्प मांग रहा है तुमसे रिलेटेड टू कुछ, उसे नहीं पता चल रहा कुछ, और तुमसे पूछ रहा है कि भाई जस्ट एक्सप्लेन मी दिस पर्टिकुलर सेंटेंस और दिस पर्टिकुलर मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो उसे नहीं समझ में आ रहा है, एंड यू आर सपोर्टिंग. दैट्स वेरी गुड. क्योंकि जितना किसी को हम समझाएंगे, सिखाएंगे, एजुकेशन इज सच, द मोर यू टीच समवन द मोर यू बिकम परफेक्ट, राइट? तो किसी को एग्ज़ाम में हेल्प मत करो चीटिंग करने में, बट एग्ज़ाम हॉल के बाहर, क्लास में, या घर पे तुम बैठे हो, कोई फ्रेंड आ रहा है, भाई मुझे ये सब बता देना, नहीं पता चल रहा, या ये कोई आंसर नहीं समझ में आ रहा, एक्सप्लेन. इट्स वेरी गुड. यू आर सपोर्टिंग समवन. तुम्हारा डबल बार हो गया तो तुम्हारा परफेक्ट हो गया. किसी और को भी ऐसे समझाओगे तो और तुम परफेक्ट होते जाओगे इस पर्टिकुलर पार्ट में, राइट? अब प्रिंस ने कहा कि स्वॉलो, तुमने किसी को आज बहुत सपोर्ट किया, उस गरीब फैमिली को जाके सपोर्ट किया, इसलिए तुम्हें एक अच्छी फीलिंग आ रही है. व्हेन डे ब्रोक, मतलब सुबह हुई, स्वॉलो तो रेडी हो गया उड़ने के लिए टूवर्ड्स इजिप्ट. तो उसने जाके पहले रिवर में गया, वहाँ के पानी से उसने बात लिया और खुद से बात करा था, येस आई एम गोइंग टुनाइट टू इजिप्ट. ही वॉज इन हाई स्पिरिट एट दिस प्रोस्पेक्ट मतलब पॉसिबिलिटी, और हाई स्पिरिट में था, मतलब बहुत खुश था. He visited all the monuments, sat a long time at the top of the church steeple,
मतलब इट्स लाइक द टॉप पार्ट, जैसे मंदिरों में भी होता है ऐसे, राइट? वैसे इट्स लाइक अ पिरामिडिकल स्ट्रक्चर, वैसे यहाँ पे चर्च के ऊपर का पार्ट, वहां जाके बैठ गया, राइट? बहुत सारी चीजें देखी उसने उस टाउन की, राइट? When the moon rose, he flew back to the happy prince. Now, have you any commissions for Egypt? He cried. I'm just starting. मतलब उस swallow ने कहा, देखो भाई मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, कमीशन मतलब तुम्हें कुछ काम है, कुछ कमांड करना है मुझे इजिप्ट के लिए, तो अब मैं मेरी जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रिंस ने कहा, swallow swallow little swallow, please stay with me one night longer. अब swallow ने कह दिया, भैया ना, आई एम गोइंग टू इजिप्ट, माई फ्रेंड्स आर वेटिंग। एक रात तो रुक लिया मैं, अब और एक रात नहीं, मुझसे नहीं होगा। प्रिंस सेड, प्लीज swallow swallow little swallow, far away across the city I see a young man in a garret. garret मतलब जैसे एटिक या एक छोटा सा एक रूफ, यू नो, जैसे टॉप फ्लोर पे कहीं पे एक छोटा सा रूफ के अंदर एक छोटा सा रूम हो, या सम लाइक वेरी स्मॉल रूम जहाँ पे एवरीथिंग इज नॉट वेरी परफेक्ट और गरीबी दिखती है वहाँ पे। यू कैन इजीली से दैट द पर्सन नॉट अ वेल ऑफ पर्सन, डजंट हैव दैट मच ऑफ मनी टू मूव अहेड इन लाइफ। तो फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी अ यंग मैन इन द एटिक रूम, ही इज लीनिंग मतलब आगे झुकना, और डेस्क कवर्ड विथ पेपर्स मतलब शायद कुछ लिख रहा होगा। And in the glass by his side there is a bunch of withered violet, और उसके पास टेबल पे एक ग्लास है जिसके अंदर ड्राई वायलेट मतलब फ्लावर्स, तो ड्राई फ्लावर्स पड़े हैं। हेयर बेचारे के ब्राउन और क्रिस्प हो गए, क्रिस्प मतलब सूखे एकदम। हिज लिप्स आर रेड एज पोमोग्रेनेट, पोमोग्रेनेट तो पता ही होगा, दाड़म। एंड ही हैज अ लार्ज एंड ड्रीमी आईज, लेकिन आंखें एकदम फुल ऑफ ड्रीम्स। He is trying to finish a play for the director of the theatre. अब थिएटर के डायरेक्टर के लिए वो प्ले फिनिश करने की कोशिश कर रहा है, नाटक लिख रहा है। But he is feeling too cold to write anymore. There is no fire in the grate. Grate मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे वुड के पीसेस डालते हैं, जलाते हैं। कोल्ड एरियाज में ये होता है, कोल्ड कंट्रीज में। और खाने के लिए पैसे नहीं थे। Hunger has made him faint. बहुत भूख लगी थी। I will wait for you one night longer, said the swallow. फिर मत बोलना कल रात को कि रुक जाओ, बस और एक रात रुक लेता हूँ। Why did he say? Because he was very good at heart, right? He asked if he should take another ruby to the young playwright. Alas, I have no ruby now. अब swallow ने कहा, और एक रूबी ले जाओ इस यंग नाटककार के लिए, मतलब प्ले राइट के लिए। प्रिंस ने कहा, alas मतलब very sad. I don't have any more ruby. Yes, I have my 2 eyes which are fitted with another precious stone, sapphire. They are made of rare sapphire. Rare मतलब hardly कहीं पे मिले, बहुत costly, which were brought out of India thousands of years ago. He ordered the swallow to pluck out one of them, take it to that poor playwright. He will sell it to the jeweler, buy some firewood, कुछ खाना खा लेगा, finish the play, earn more money, said the prince. Dear prince, I can't do that. और बेचारा swallow रोने लगा। Why? Once again good at heart. और swallow को बहुत रोना आया, ना आपकी एक आंख में नहीं निकाल पाऊंगा। Swallow, said the prince, do as I order you. So the swallow plucked one eye, flew away to that young man's house, that is garret, and it was easy enough to get in. आसानी से पहुंच गया वो उसके घर के अंदर। There was a hole in the roof, और वो छोटा सा बड़ अंदर चला गया। Through this he darted and came into the room. Darted means just entered and came in the room. And the young man had his head buried in his hand. ऐसे करके, right? वो ऐसे सर टेबल के ऊपर रखे हुए था, अपने हाथ ऐसे रखे हुए थे। He did not hear the flutter of the bird's wing, और बर्ड के विंग्स की आवाज उसे सुनाई नहीं दी। When he looked up, he found a beautiful stone lying on the withered violet. और जब आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके ड्राई फ्लावर्स जो रखे थे उसके ऊपर एक
रेयर सफायर था एंड बिगनिंग टू बी अप्रिशिएटेड। उसे लगा वाह, मेरे नाटक तो लोग अप्रिशिएट करने लगे हैं, कोई यहाँ पे गिफ्ट रख के चला गया। दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, शायद जिसको मेरे काम बहुत पसंद है वही यहाँ पे छिप के रख के चला गया। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, ही लुक्ड वेरी हैप्पी। द नेक्स्ट डे द स्वॉलो फ्लू डाउन टू द हार्बर। हार्बर पता है ना, जहाँ पे बोट्स और शिप्स एंकर होती है एंड there's like पोर्ट, बड़ा होता है उसको पोर्ट कहते हैं, दिस हार्बर। He sat on the mast of a large vessel, vessel मतलब big ship, and watched the sailors working. I'm going to Egypt, said the swallow. But nobody minded. अब उसकी बात थोड़ी ना लोग सुनेंगे. And when the moon rose, once again he flew back to the happy prince. Now see, I have come over here to say you goodbye. Right? Swallow, swallow, little swallow. Will you not stay one night longer with me, said the prince. Swallow said, अरे भाई इट्स विंटर, अब स्नोफॉल भी जल्दी शुरू हो जाएगा। इन इजिप्ट द सन इज वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज, crocodiles lie in the mud and look lazily about them. मैं नहीं जाने वाला, मुझे इजिप्ट भागना है। यहाँ पे स्नोफॉल स्टार्ट हो जाएगा, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा यहाँ पे तो, और इजिप्ट में वार्म सन ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज एंड ऑल, तो मैं तो जा रहा हूँ आज। In the square below, said the happy prince, there stands the little match girl. She has let her matches fall in the gutter. अब प्रिंस ने उसके बोलने की राह भी नहीं देखी और कहने लगा, देखो वहाँ नीचे एक बेचारी मैच बॉक्स बेचने वाली छोटी सी लड़की, और उसका मैच बॉक्स तो गटर में गिर गया। अब वो सारे गीले हो गए, खराब हो गए, उसके पापा मारेंगे उसे इफ शी डजंट गेट मनी होम बैक। एंड शी इज क्राइंग, शी हैज नो शूज और स्टॉकिंग्स, हर लिटिल हेड इज बेयर। इतनी ठंड है, सर पे ना कोई कपड़ा, ना कोई कवरिंग, ना शूज, ना स्टॉकिंग। स्टॉकिंग मतलब सॉक्स जो यूजुअली लड़कियां पहनती है लंबे नीज तक के, राइट। Pluck out my other eye and give it to her, and her father will not beat her. My God, I will stay you with one night longer, but I'm not going to take away your eye. I'll not pluck your eye. You will become blind. Swallow, swallow, little swallow. Do as I order you. And so he plucked the princess' other eye and darted down with it. Darted मतलब descend, नीचे आ जाना. He swooped past the match girl. और वहाँ से मैच गर्ल के पास से फ्लाई हुआ, स्लिप द ज्वेल इन द पाम ऑफ अ हैंड, और उसके पाम में, उसके हाथ में डाल दिया ज्वेल। व्हाट अ लवली बिट ऑफ ग्लास, क्राइड द गर्ल। शी रैन होम लाफिंग। देन द स्वॉलो केम बैक टू द प्रिंस। यू आर ब्लाइंड, सो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज। अब देखो कितना अच्छा था ये बर्ड। उसने कहा अब तो तुम ब्लाइंड हो गए हो, तो अब तो मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। लेकिन अब देखो प्रिंस भी कितना अच्छा था। उसने कहा ना, यू गो अवे फ्रॉम हियर टू इजिप्ट, योर फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर यू। नो, आई स्टे विथ यू ऑलवेज, सेड द बर्ड, एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंसेस फीट। ऑल द नेक्स्ट डे ही सैट ऑन द प्रिंसेस शोल्डर, टोल्ड हिम द स्टोरीज अबाउट व्हाट ही कुड सी इन द स्ट्रेंज लैंड। और उसके शोल्डर पे, ये ऊंचाई पे बैठे हुए पूरे वहाँ एरिया में क्या हो रहा था वो उसको बता रहा था। Dear little swallow, you tell me of marvelous things, but more marvelous than anything is the suffering of men and women. अब जो स्टोरीज जो वो देख रहा था, स्वॉलो बता रहा था, प्रिंस ने कहा, भाई स्वॉलो तुम तो मुझे अच्छी अच्छी स्टोरी बता रहे हो, सबसे बड़ी चीज़ अच्छी क्या है तो वो बताओ, ताकि हम उसको मदद कर सके। हमारे लैंड में सबसे ज़्यादा दुखी कौन है वो मुझे बताओ। There is no mystery so great as misery. Misery मतलब दुख, ये बहुत बड़ा है लोगों के लिए लाइफ में, तो हम कुछ मदद कर पाएँ, बताओ मुझे उनके बारे में। Fly over my city, little swallow, tell me what you see there. अब तुम फ्लाई होते होते देखो कि दुखी कौन है वहाँ पे। So the swallow flew away the great city. He saw the rich making merry in the beautiful houses. अब स्वॉलो ने देखा ऊपर से ग्रेट सिटी में कि रिच लोग मज़े कर रहे थे अपने बड़े हाउस में, लग्जरियस हाउस। When the beggars were sitting at the gates, he flew into the dark lanes, गरीबों की गलियों में घुमा, saw the white faces of the starving little children,
looking out listlessly, without any thought at the black street. और ये बेचारे गरीब बच्चे स्टाव हो रहे थे, खाना नहीं था. अंडर द आर्कवे ऑफ द ब्रिज, ब्रिज में आर्कवे मतलब ऐसे एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द ब्रिज, उसमें आर्क रहता है. तो अंडर द आर्कवे ऑफ द ब्रिज 2 little boys were lying in each other's arms to try and keep themselves warm. 2 छोटे लड़के बैठे हुए थे एक दूसरे को ऐसे आर्म्स इन आर्म्स, और बहुत नज़दीक बैठे हुए थे, अपने आप को शायद वार्म रख रहे थे. हाउ हंग्री वी आर, दे सेड. यू मस्ट नॉट लाई हियर, शाउटेड द वॉचमैन. अब वॉचमैन ने भी निकाल दिया उनको, भागो यहाँ से. और बेचारे बारिश में यहाँ से वहाँ भटकने लगे. Then he flew back and told the prince what he saw. I am covered with fine gold. You must take it off leaf by leaf and give it to these poor children. The living always think that gold can make them happy. अब देखो, राजा ने कहा तुम ये दे दो एक एक लीफ का पत्ता निकाल के गरीबों को, क्योंकि जो जिंदा है वो क्या मानते हैं, गोल्ड इज इक्वल टू हैप्पीनेस, मनी इज इक्वल टू हैप्पीनेस. तो मेरे तो कुछ काम का है ही नहीं ये गोल्ड, दे दो उनको. Leaf after leaf of the fine gold the swallow picked off till the happy prince looked quite dull and grey. Leaf after leaf of the fine gold he brought to the poor. Children's faces grew rosier. Happiness was seen on the face of the poor children. They laughed and played in the street. We have bread now. खुश हो गए, वाव, अब पैसा मिला, अब हम खाना खा पाएंगे. They cried. Cried मतलब चिल्लाए. Then the snow came. After the snow came the frost. Streets looked as if they were made of silver. Everybody went about in furry clothes, coats and all. Little boys wore scarlet caps. और छोटे बच्चे red caps पहने हुए थे. They were doing skating on the ice. Poor little swallow grew colder and colder. लेकिन अब क्या हुआ, बेचारा swallow जो छोड़ना नहीं चाहता था प्रिंस को, राइट, अब ठंड बढ़ रही थी, वो जैसे मर रहा था बेचारा. But he would not leave the prince. He had started loving the prince. He picked up the crumbs outside the baker's door. और बेकर के बाहर, डोर के बाहर कुछ ऐसे क्रम्स पड़े हुए थे ब्रेड के, वो उठा के वो खाने लगा जब बेकर नहीं देख रहा था. And tried to keep him warm by flapping the wings. बहुत कोशिश की स्वॉलो ने अपने आप को वार्म रखने की, ठंड से बचाने की. But at last he knew he was going to die. He had just enough strength to fly to the prince's shoulder once more. And he said, "Goodbye, dear prince. Will you let me kiss your hand?" अब एक्चुअल में तो मर रहा था, तो उसने कहा गुड बाय डियर प्रिंस. प्रिंस को लगा कि वो इजिप्ट जा रहा है. आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट. यू हैव स्टेड टू लॉन्ग, बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स. आई लव यू. इट्स नॉट टू इजिप्ट आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ. और स्वॉलो ने क्लियर किया, मैं इजिप्ट नहीं जा रहा, मैं हाउस ऑफ डेथ जा रहा हूँ. डेथ इज अ ब्रदर ऑफ स्लीप, इज ही नॉट? ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड ही फेल डाउन डेड एट हिज फीट. अब मर गया वो. एंड एट द सेम मोमेंट, इमेजिन व्हाट हैपेंड. देयर वाज अ क्रैक साउंड इनसाइड द स्टैच्यू. मतलब राजा भी मर चुका था, एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन. द फैक्ट इज, जो हार्ट लेड का बना हुआ था has snapped into two. वो टूट चुका था 2 पार्ट में. It certainly was a dreadfully hard frost. Really बहुत ठंड थी बाहर. Early the next morning, the mayor was walking in the square, main market area में, below, in the company with the town councillors. अपने ग्रुप के साथ, काउंसिलर जो सलाह सूचना देते हैं राजा को, उसके साथ दूसरे दिन, मतलब मेयर का सपोर्टर. यहाँ पे राजा नहीं था, ये मेयर था. तो मेयर के साथ साथ वो चल रहे थे काउंसिलर. एज दे पास बाय दैट कॉलम, दे लुक्ड अप एट द स्टैचू. खराब हो चुका था, टूटा फूटा. डियर मी, हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक. दैट इज हाउ डर्टी. दे सेड द मेयर. यस, सेड द काउंसिलर्स, वेरी शैबी, हु ऑलवेज अग्रीड विद द मेयर एंड वेंट अप टू लुक एट इट. अब मेयर जो कहता उसमें काउंसिलर हाँ साहब, यस सर, यस, सब में हाँ कहते. The ruby had fallen out of the sword, eyes had gone, gold was not there. In fact, he is a little better than a beggar. ठीक है, मेयर ने कहा कि ये राजा का पुतला तो भिखारी से थोड़ा बेटर है. And
लिटिल बेटर देन अ बेगर। अब काउंसलर तो रिपीट ही कर रहे थे मेयर के जो वर्ड्स थे, उन्होंने भी कहा यस, अ लिटिल बेटर देन अ बेगर। Here is actually a dead bird at his feet, said the mayor. We must really issue a proclamation. Issue मतलब a proclamation मतलब कि हमें एक मैसेज अभी देना है टाउन में, that birds are not allowed to die here. चलो एक प्रोक्लेमेशन कर लो, एक अनाउंसमेंट आई वुड से। तो मेयर ने कहा अपने काउंसलर को कि अब तो हमें एक अनाउंसमेंट करनी चाहिए इस टाउन में कि बर्ड्स को यहाँ पे मरने की इजाज़त नहीं है, दे आर नॉट अलाउड। एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन। उसने लिख लिया टाउन क्लर्क ने, ठीक है हम अनाउंस कर देंगे। देन दे पुल डाउन द स्टैचू, स्टैचू को नीचे गिरा दिया। एज इज नो लॉन्गर ब्यूटिफुल, इज ऑफ नो यूज, सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन द फर्नेस। व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग, said the overseer of the workmen at the foundry. Overseer मतलब जो मेन जो वहाँ का होता है फाउंड्री में, मतलब जहाँ पे सारी चीज़ें मेल्ट होती है फर्नेस में, वहाँ पे एक जो मेन हेड था वहाँ का, उसने कहा माय गॉड हाउ क्यूरियस, हाउ स्ट्रेंज, दिस ब्रोकन लेड हार्ट इज नॉट मेल्टिंग इन द फर्नेस, वी मस्ट थ्रो इट अवे। सो दे थ्रू इट ऑन द डस्ट हीप। और जहाँ पे एक ढेर था, बहुत ही बड़ा सा एक हीप था कचरे का, वहाँ पे डाल दिया ऐसे। एग्जैक्टली वो हार्ट कहाँ पे जाके गिरा? नियर द डेड bird where it was lying, right? So bring me the two most precious things in the city, said God to one of his angels. राजा ने कहा नीचे जाके दो most precious things city की ले आओ। And the angel brought him what? Yes, you know that heart, lead का बना हुआ उस प्रिंस का, and that dead bird. You have rightly chosen, said God, for in my garden of paradise, मतलब मेरे यहाँ पे हेवन में, this little bird will now sing for me always, and in my city of gold, the happy prince shall praise me. Right? Written by Oscar Wilde. So very interesting. I would say very emotional story it was. And as we complete the chapter, start learning, writing it down in your homework book. Textual exercise पहले कर लो, बाकी सब कुछ बाद में। उसके बाद follow the notes. Do the grammar portion from the notes. I can only request you, please be along with the lectures. के flow के साथ अपना काम complete करते रहो। Yes, I'm very thankful to one of the child. I'm not going to name the child. But एक बच्चा 9th का, and he's listening over here to me, I know. I was really shocked. At the same time, I was very happy. उस लड़के ने एक दिन मुझे फ़ोन किया, मैम 14 चैप्टर के नोट्स में शायद एसएस में ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, एंड माई लैपटॉप इन दोस 2 days आई हैड केप्ट इट एट कुशांसर्स प्लेस, तो दैट वर्क was not done, means I couldn't go through everything, that my whole lot was there over there. तो मैंने कहा ठीक है मैं देख लूँगी, लेकिन मैंने बोला बच्चा 14 चैप्टर की टेस्ट तो अभी हमने रखी ही नहीं है। नो मैम, यू सेड ना, आप लेक्चर में कहते हो, वीडियो लेक्चर में, कि जैसे जैसे मैं चैप्टर कंप्लीट करूँ आप लोगों को लर्न करके रखना है। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू द चाइल्ड ओवर दैट चाइल्ड, आई नो हिम, आई नॉट नेम द चाइल्ड, but the child is listening to me and I am thankful to you dear बच्चा, I am really thankful to you। और ऐसे कई बच्चे हैं जो मुझसे जब बात करते हैं तो they say that yes we are completing the daily work। आपको रोज़ कहने की ज़रूरत नहीं है मैम कि ये चैप्टर ख़त्म हुआ लिख लो, हम लिख ही लेते हैं। Many children, they give a phone call to me once or twice a week. We really, apart from studies, there are many other things that we chat, we talk with each other. They feel relaxed, I feel relaxed on this, and it gives a bit of happiness to both the side, both the parties. तो ये टाइम पीरियड भी ऐसा है where we can talk to each other, फोन कॉल कर लो, ग्रुप में आ जाओ, वीडियो कॉल करेंगे। दिस इज़ व्हाट मैनी स्टूडेंट्स दे डू। देयर आर मैनी ग्रुप्स जहाँ पे
बच्चे बात करते हैं हमसे ऐसे ग्रुप में, 4-4 5-5 के ग्रुप में, फॉर नियरली समटाइम इट गोज ऑन टू 1 hour, राइट? तो ये सारे बच्चे, बहुत बच्चे कहते हैं दैट यस वी आर कंप्लीटिंग द वर्क, आप टेंशन मत करो. बट देन देयर इज अ स्मॉल लॉट विच ऑफ दैट ग्रुप ऑफ फ्यू चिल्ड्रन, प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग दैट कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम. जैसे चैप्टर का मुझे पता है बहुत कई बच्चों का ये डंप हुआ है. स्टार्ट फ्रॉम टुडे, अभी भी टाइम है. आई वुड से स्टार्ट डूइंग हार्ड वर्क. कंप्लीट बैकलॉग मत रखा करो, सब पहले कंप्लीट कर लो और साथ साथ जो रूटीन लेक्चर्स है उसको भी कंप्लीट करते जाओ. बिकॉज एसएस विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम एंड इंग्लिश ग्रामर फॉर यू. क्योंकि फिर से मैं ग्रामर लूंगी इन बिटवीन विथ लॉट्स ऑफ एक्सरसाइजेज, राइट? और अभी भी काफ़ी कुछ बाकी है हमारा, लाइक राइटिंग स्किल. एंड यू फ्रॉम योर एंड ऑल्सो यू कैन व्हाट्सएप मैसेज कर दो मुझे या फ़ोन कर दो कि स्पेशली, जैसे कहते हैं ना, सब लोग जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो कहते हैं कि ओके ठीक है मंगवाना है, एक कोई वन ऑफ द पर्सन फैमिली वो ही सबके लिए ऑर्डर कर देगा, लेकिन तुम कहोगे नहीं मेरे लिए तो कुछ अलग ही. तो मैं सबके लिए एक कॉमन प्रोवाइड कर रही हूँ. व्हाट? जब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सिंपल तो भाई सब लोग वही देख रहे हैं. बट इफ यू हैव योर पर्सनल चॉइस कि नहीं मैम ये रिपीट करवाओ, देयर गोज अनदर वीडियो फॉर यू स्पेशली, राइट? I will be very thankful and I feel very happy if you people come with suggestions कि मैम और एक रिवीजन लेक्चर डाल दो ना, तो गुड, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगेगा. ये और मेरे 1-2 घंटे उसमें हो जाएंगे मस्त एकदम, यू नो, आई विल एन्जॉय. तो प्लीज़ अ वेरी लविंग रिक्वेस्ट आई वुड से, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, प्लीज़. सो थैंक यू सो मच. बी हैप्पी and be with your parents, work hard,